Yo bro, welcome to the channel, and today I'm going to tell you how to remember what you study. You see, when you first learn something for the first time, for example, let's say chemical bonding, you're learning about sigma bonds and pi bonds. You will remember it for 3-4 days, okay? And then you'll forget. This is purely because that's how your memory curve works. And in order to make sure that something stays in your brain for the long term, you have to revise it. I'll get to that in a minute. But for studying, there are two types of memories we have. We have the short-term memory and long-term memory. The short-term memory is usually used for like cramming. Ek raat pehle exam se you have to memorize all of these formulas. You know, itna sab padhna hai, ye wo. So short-term memory and long-term memory, they're both very important. And long-term memory, as the name implies, is the memory that is used to remember something for the long term. So in order to put something from your short-term memory into your long-term memory, you have to revise. And you have to revise in these blocks, which I'll show you right now. So as you can see the graph on your screen right now, you have to memorize in these intervals, just so something stays in your long-term memory. भाई ऐसा एक भी इंसान नहीं रहता दुनिया में जो एक बार पढ़ लेके ये जिंदगी भर याद रख लेता. Of course एक छोटा टॉपिक है, समझो बहुत बारीक सा टॉपिक, जैसे what is electric flux for example. Sure, वो याद रख लेते. What is current, वो याद रख लेते. मगर जो main tidbits रहते, जो main meat रहता portion का, you won't remember that unless you revise. Revision both essential है bro, and I'll help you keep a revision schedule. So first and foremost, you want to revise for 2 hours on a daily basis. भाई जब पूरा पढ़ लेते जो रहता ना, the main like maths रहो, chemistry रहो, physics रहो, जब पूरा पढ़ लेते, when you're tired, that's when you want to revise भाई. तो क्या करना चाहिए for revision? First and foremost, you want to do PYQs, क्योंकि PYQs से concept revise होता तुम्हारे दिमाग में. And the second way to revise is through short notes. You first and foremost, you want to have your proper notes, वो भी जो बहुत condensed रहते हैं. And secondly, you want short notes which are even more condensed. So you want to revise from these two. ऐसा पूरा देखने की जरूरत नहीं है फिर से लेक्चर, पूरे नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, खाली जो हिस्सा याद नहीं है वो रिवाइज करो. एंड हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट यू डोंट रिमेंबर? बाय डूइंग PYQs भाई. जब एक PYQ सॉल्व नहीं हो रहा, दैट मींस दैट पोर्शन, दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट रिवाइज्ड इन योर ब्रेन, इट्स नॉट करंटली देयर. तो वो स्पेसिफिक हिस्सा जाके रिवाइज करो. पूरा रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम भाई. जो याद है वो फिर से देख लेके क्या कर लोगे भाई, लाइक क्या उखाड़ लोगे, जो याद है वो फिर से देख लेगे. और रोज 2 घंटे रिविजन करके यू वांट टू कीप 1 डे असाइड प्योरली फॉर रिविजन. इस दिन सुबह से शाम तक रिविजन होने वाला है खाली. तो फॉर मी दिस डे वाज फ्राइडे जुम्मा का प्रेयर भी रहता, तो वो रिविजन डे में दिन भर PYQs करना है, PYQs लगाना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है. दैट्स इट. एंड आई फील लाइक दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. नॉट द बेस्ट वे, दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट इट भाई. रिविजन इज लाइक 50% ऑफ योर स्टडीज मैन. रिविजन बिना करे यू कैंट एक्सपेक्ट टू क्रैक द एग्जाम. एंड लेट इट बी एनी एग्जाम भाई, UPSC, JEE, NEET, CA, even boards man, even college engineering exams जो रहते हैं, internals, externals, you can't go by without revision. Revision is like a core integral part of your study. You can't expect to get good grades when you're not studying man. It's kind of obvious. I don't need to tell this to you. भाई तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, एक चैप्टर पढ़ते इतना सारा पूरा घस लिए दिमाग में, and then finally वो satisfaction मिलता कि ये चैप्टर हो गया, मगर देखे जब तक you don't even remember anything from the chapter. Literally basic से basic सवाल सॉल्व नहीं हो रहा. मेरे साथ बहुत बार हुआ भाई है. मैं पूरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कर लिया था, लिटरली संगीत से, वो भी पूरा भूल गए भाई. पूरा एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा स्ट्रीट लाइन का, जो पहले 2 सेकंड में सॉल्व कर लिया था मैं, पेन पेपर भी ना चाहिए, मेंटली सॉल्व कर लिया था. सो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा भाई. एंड व्हेन आई टेल यू आई वाज डिसहार्टेंड भाई, ऐसा लिटरली रिग्रेट हो रहा था कि भाई ये क्या है भाई, ये सिंपल सा सवाल कहीं सॉल्व नहीं हो रहा. एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू एज वेल भाई. लाइक ये एक बार फिर से हुआ था जब मैं फिजिक्स का पढ़ा था. फिजिक्स में वो पढ़ा था मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया था, E to Z पूरा. आई वाज सो हैप्पी भाई. एक हफ्ते बाद देखे तो अपने भाई पूरा भूल गए. डोंट बी दैट गाय भाई, डोंट बी दैट गाय. तो पूरा पोर्शन खत्म कर लेके पूरा पार्टी कर रहा, फिर देखे तो कुछ भी याद नहीं है, उसको खाली 20% पोर्शन याद है. इन माई ओपिनियन भाई, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडीइंग इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू रिविजन भाई. माइट एज वेल इफेक्टिवली वेस्ट योर टाइम. जाके मूवी देख लो, शॉर्ट्स देखो, PUBG खेलो. What's the point of wasting your time in a productive way, right? Because at the end of the day, it's a waste of time if you study without doing revision. It's kind of obvious. So, bhai, for the love of God, please do revision because your grade depends on this, bhai. Literally, I'm not even exaggerating when I tell you your grade depends on this. If you don't revise, if you don't review the concepts, the material and everything, forget your IIT dream, forget your AIMS dream, forget your dream of cracking UPSC, of cracking CA, or whatever it is. Forget your dream of getting 75% in boards. Not going to happen if you don't revise. If you say your goal is to get X, you have to behave like your goal is to get X. You know the rules, and so do I. Never gonna give you up, never gonna let you down. Get rickrolled, bro. L, get rickrolled. Also, I cut my beard, bro. How does the beard look? I think it looks awesome, bro.
So yeah भाई, do the revision. I already gave you advice on how to schedule your revision. भाई समझो 12 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 2 घंटे रिविजन रहना चाहिए. 10 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे रिविजन, और एक दिन पूरा 12 घंटे रिविजन भाई. Like revise. और इसके ऊपर से when your prep is done, जब पूरा portion हो जाता, all you'll have to do is revise. दिन ब दिन only revision. PYQs. तो of course make that work easier for you, like the end game prep. Make that easier for you because जब ये खाली हाथ नहीं रहना है, पैदल नहीं हो जाना है, जब ऑलरेडी सिलेबस 4-5 बार रिवाइज करके रख लिए, तो जब उतना गिच्ची नहीं होती कि भाई क्या है भाई, ये अजाब नहीं हो जाता जिंदगी में भाई. जब तो सेव योर सेल्फ भाई, सेव योर सेल्फ फ्रॉम द डूम, फ्रॉम द इनएविटेबल फ्यूचर ऑफ नॉट रिमेंबरिंग अ सिंगल थिंग फ्रॉम द पोर्शन प्योरली जस्ट कॉज यू डिडंट रिवाइज. एंड अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, डोंट वॉच योर लेक्चर्स इन 2 times स्पीड, 3 times स्पीड, क्योंकि मेमोरी रिटेंशन बहुत कम रहता है भाई. इफ यू एक्चुअली वांट टू रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्नड, यू हैव टू वॉच द लेक्चर्स एट नॉर्मल पेस. जो सर पढ़ा रहे वही पेस पे देखना है, ज्यादा स्लो नहीं, ज्यादा तेज नहीं, नथिंग. योर पेस should be the teacher's pace. भाई क्या होता है मालूम, जब 2 times फास्ट पे देखते हैं लेक्चर, 2 times स्पीड, यू वोंट रिमेंबर एनीथिंग, क्योंकि पहली बात मेमोरी रिटेंशन बहुत कम रहने वाली है, एंड प्लस दिमाग को टाइम नहीं मिलता इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करने. तो लाइक इफ योर ब्रेन कैन डाइजेस्ट द इन्फॉर्मेशन, हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन भाई. इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस. 2 times स्पीड बोले तो ठीक है, मे बी 1.5 times स्पीड यू कैन गेट बाय इफ द टीचर इज टीचिंग वेरी स्लो. 3 times स्पीड भाई भूल जाओ भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है 3 times स्पीड पे. याद रखना है तो नोट्स भी बनाओ भाई. इससे पहले नोट्स का जिक्र करा था मैं कि नोट्स रिवाइज करो, तो नोट्स बनाओ मगर बहुत कंसाइज कॉम्पैक्ट नोट्स बनाओ. 2000 पेज के नोट्स मत बनाओ भाई, लाइक दैट्स यूजलेस इन माय ओपिनियन. यू आर नॉट गोना गेट टाइम टू रिवाइज 2000 पेज नोट्स मैन. 10 पेज नोट्स पर चैप्टर इज फाइन, वो भी मेन पॉइंट्स के साथ खाली. ये नहीं रहना है कि व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज EMF, ये सब नहीं रहना है. ओनली द मेन थिंग्स, द मेन मीट ऑफ द चैप्टर शुड बी इन योर नोट्स. और मेमोरी रिटेंशन के वास्ते, फॉर इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स, यू नीड टू स्लीप प्रॉपर्ली भाई. स्लीप शेड्यूल को सुधार दो भाई, क्योंकि 8-9 घंटे स्लीप इज काइंड ऑफ necessary if you are planning to study. 4 घंटे नींद चलेगी भाई for like YouTube or you know freelancing or anything like that. मगर for studying you can get by with low sleep, क्योंकि first and foremost you get more energy by sleeping, so you'll have more energy to spend on your studies. And secondly, you'll have more memory retention if you sleep. Memory retention depends on your sleep. They are both like proportional to each other. And another thing, in order to remember what you study, from time to time just pause and think कि अच्छा ये एक पेज पर आया, ये एक पेज में क्या था. Actively recall it. अगर याद नहीं आ रहा, revise that page again, cause जो इन्फॉर्मेशन था वो पेज पे यू हैवंट फुली अंडरस्टूड इट. फॉर एग्जांपल लेक्चर देख रहे APJ सर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देख रहे. फॉर एग्जांपल मैं एपिसोड 1 पे हूँ और उन्होंने बोल रहे ये सेल है, ये सेल ये करता. मैं पॉज करते ओके, तो सेल ये काम करता है, इट सप्लाइज, तो ओके इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करते हैं, दे मूव ऑपोजिट टू दैट, ओके डन. सिंपल एज दैट. पॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक्चुअली डाइजेस्ट द इन्फॉर्मेशन, रिकॉल इट भाई, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन. अनदर थिंग, एक्टिव रिकॉल. लाइक फॉर एग्जाम्पल रिवाइज करना है, बुक सामने रखो, हैंड्स फोल्डेड, ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा थियरी बोलना शुरू करो वर्ड बाय वर्ड. ऐसा बोलो कि तुम दोस्त को समझा रहे थियरी जो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी भी नहीं पढ़ा, उन्हें कंप्लीटली न्यूब है समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसको समझा रहे जैसा समझाओ अपने आप को. लाइक ओके भाई चार्ज ऐसा रहता, एक इन्फिनिट डिस्टेंस दूर फेंके तो चार्ज को, और फिर हल्लू यहाँ पे लेके गए, 1.2 पॉइंट चार्जेस रहते हैं, ठीक है. तो वो लॉ रहता ना, एक क्या नाम था लॉ का, वेट लेट मी रिमेंबर, कूलम्स लॉ रहता है, F = Q1 Q2 by R². R is the separation distance, Q1 Q2 ये रहता, K तो कांस्टेंट रहता, 1/4 pi epsilon naught. बेसिकली समथिंग लाइक दैट भाई. एक दोस्त को समझा रहे जैसा एक्सप्लेन करो, एंड बेटर येट एक दोस्त को एक्चुअली समझाओ भाई, लाइक रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स भाई. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा समझो चैप्टर में, एक्चुअली मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट. ऐसा नहीं है कि बाद में देख ले, तुम्हें जब चैप्टर हो ज़्यादा देख लेते हो, बिकॉज कब जब नहीं देखने वाले भाई, कम ऑन, यू नो दिस एंड सो डू आई, नेवर गोना गिव, ओके नॉट अगेन, यू नो द रूल्स एंड सो डू आई. वी नीड टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी नीड टू मेक श्योर वी रिटेन द कॉन्सेप्ट्स. तो यू नो एवरीथिंग यू नीड टू नो नाउ फॉर रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट्स. आई होप every single point of mine was clear. If it wasn't, do feel free to reach out to me on Instagram or Discord. Both of them are in the about section of my channel. I'm currently uploading daily, like आज तो 30 वीडियोज़ रिकॉर्ड करना है अपने भाई को. अपने भाई ग्राइंडिंग इन साइलेंस कर रहे भाई. अभी तक 4-5 बार शर्ट चेंज कर लिया भाई, क्योंकि अजीब दिखता वाइट शर्ट में. 1 महीने के लिए पूरा कंटेंट वाइट शर्ट में आ रहा. आज 30 वीडियोज़ रिकॉर्ड करना है, तो वेरी बिजी डे मैन, वेरी बिजी डे इंडीड. तो हाँ, लाइक दैट इज़ द थिंग, वी आर वेरी बिजी टुडे. सॉरी. What else do I have to say? Not much bhai, except for my voice hurts and I'm too oversprung on caffeine. I hope you have a very elastic day, bro. This is your neighborhood friendly civil signing off, and as always, bye.